Welcome Shiva bro, welcome to Phison. Thank you guys. Thanks for having me. So bro, before moving further, एक बार थोड़ा सा Yeah, आपका introduction, a basic introduction. yeah, yeah. So guys, myself Shiva Pawar. I'm a certified nutrition expert, nutrition consultant, a fitness trainer, a CPT, and apart from that, I do train like I'm a sponsored athlete too. I do promote a brand. So I am a sponsored athlete from Absolute Nutrition Official. It's an Indian brand. Apart from that, I do have a small business. I do run a gym of my own, and I'm a traveler. And I'm starting a YouTube actually really soon. So basically, I do everything a youngster do. So how did you start with fitness? ये कैसे passion आया? Actually, fitness की journey बहुत interesting है. It's a little story. I'm a medical student actually, and I pursued Okay, it in that's great. 12th in book. Yeah. So I supposed to be a doctor, and the moment I entered in I cracked the exam, you know, the AIPMT, which is now NEET, the entrance exam for the medical. So I cracked the exam, and all of a sudden I got a college which I don't want. तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे रह के let's prepare again for the exam, and I used to be 48 kgs actually. I'm 6'2" right now, Okay. and I was 6'2" at age 19, and I was 48 kgs, so I was too skinny. So I used to get bullied like way too much, and yeah, so my friend just keep bullying me, and but वही मेरा motivation था. I just wanted to look good in size M. That's it. Right now I look different. I'm a little huge than M, but yeah, I just wanted to look good in size M t-shirt. That's it. I love wearing t-shirt. So I just started doing workout. I started from the calisthenics actually because I was too shy. मेरे को लगता था कि मैं जिम में जाऊँगा, I'm too skinny तो मेरा मजाक बनेगा. तो I started working on the garden, and वहाँ से फिर मेरे को क्योंकि मेरे पास साइंस थी तो I had the knowledge of nutrition, and I started gaining knowledge with the YouTube, and I started reading articles and blogs, etc. And within 6 months, I was able to put on somewhere around 10 to 12 kg. तो वहाँ से मुझे लगा कि क्यों ना like being a doctor, I can cure people. तो क्यों ना उस लेवल तक पहुँचने से पहले, क्योंकि आजकल डिजीज कितने हैं, मतलब लाइक बहुत कॉमन है, शुगर एंड ब्लड प्रेशर एंड एक्सेट्रा, एंड ये सब एक बैड हेल्दी हैबिट की वजह से होता है. क्यों ना फिटनेस को इंट्रोड्यूस करें, लोगों को इस नए तरीके से लेके आए कि वो अंदर से ज़्यादा फिट हो. बाहर से तो लाइक सब लोग, हर कोई चाहता अच्छा दिखना, बट इफ दे फिट फ्रॉम द इनसाइड दे लुक बेटर, दे फील बेटर, एंड वो ज़्यादा ठीक रहेंगे. तो बस यही था मेरा रीज़न, एंड माई बायोलॉजी जस्ट हेल्प मी, जो मैंने पढ़ाई की थी, एंड आई गॉट सर्टिफिकेशन इन दिस. आई डोंट रियलाइज इट्स बीन 5 years and I'm here right now as a completely into fitness. Okay. So bro, as you started with calisthenics, Yeah, इंडिया में बहुत completely. सारे लोग हैं जो calisthenics में जाना चाहते हैं, but they don't know how to start. So एक कोई बेसिक गाइडेंस कि कैसे स्टार्ट किया जाए कि इंजरीज भी ना Yeah, हो definitely. एंड दे कैन गो. या तो बेसिकली जो भी यंगस्टर, लाइक मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क था टू स्टार्ट द कैलिस्थेनिक्स, बिकॉज क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छे कैलिस्थेनिक्स को कोई बता नहीं रहा. मे बी मैं किसी को मिस आउट भी कर रहा हूँ, बट जितना यूट्यूब मैंने सर्च किया, इतना एक्सप्लोर किया है, आज से 3-4 साल पहले अभी भी मे बी कोई अच्छे से उसको बता नहीं रहा. दे जस्ट कैलिस्थेनिक्स लाइक का कम्प्लीटली, इसको एंशिएंट ग्रीक गॉड वर्कआउट बोलते हैं. कि जो ग्रीक गॉड्स थे जो पहले, उनके पास जो हमारे पास इक्विपमेंट है, मशीनरीज, और उनके पास इतने एडवांस नहीं थे. दे यूज्ड टू यूज देयर ओन बॉडी वेट and they used to train. And calisthenics is all about using your own body weight to train yourself to get better. And trust me, calisthenics अच्छा वर्कआउट आज अभी भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे मूवमेंट कंपाउंड होते हैं, and you don't need any equipment, you don't need any gym, you don't need to pay any membership. All you need is just a bar, an empty place. अब आप इसको पब्लिक गार्डन में कर सकते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में, घर पे, कहीं पे भी आप calisthenics कर सकते हैं. तो बेसिकली calisthenics से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है फॉर एनीवन हु वांट टू गेट फिट एंड शेप, एंड यू कैन गेट बेटर विद एवरी पासिंग डे. आप खुद की बॉडी पे कंट्रोल करना. स्टार्ट कैसे किया जाए? स्टार्ट इज लाइक बहुत If I सिंपल है. want to आपके start with calisthenics, Yeah. so how Uh-huh. should I start? Yeah, what exercises should I do in the start? कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट होता है पुशअप से, पुलअप से भी होता है. प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट होता है पुलअप से, बट आई थिंक पुलअप इज मच हार्डर फॉर पीपल लाइक जो ओवरवेट है. उनके लिए पुलअप करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, एंड नॉट एनीवन कैन हैव अ बार. मतलब हर किसी के पास कुछ वो पुल अप के लिए जो बार है वो हर कहीं नहीं होता. तो मैं मानता हूँ सबके पास ज़मीन है, एंड आपको बस अपनी जो धरती में आके पुश करके ऊपर आना है.
और अब आप अगर ओवरवेट हैं, यू हैव टू जस्ट पुट योर लेग ऑन द फ्लोर, नीज पे आप आ सकते हैं, यू कैन स्टार्ट पुशअप, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेड पुशअप, द बेबी पुशअप, एंड विद टाइम यू कैन गेट इनटू द पूरा प्रॉपर पुशअप जैसा होता है। एंड कैलिस्थेनिक्स ऑल अबाउट द बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो बस पहला चीज शुरू होती है सबसे इजी पुशअप से, यू गेट बेटर, आप पुलअप्स पे आते हैं, देन विद पुलअप्स यू गेट बेटर, क्योंकि कैलिस्थेनिक्स ऑल अबाउट द कोर स्ट्रेंथ। तो आपका कोर जितना स्ट्रांग होगा, आपका कनेक्शन अपनी बॉडी से उतना स्ट्रांग होता जाएगा, यू गेट बेटर कोर, यू गेट बेटर लोअर बैक, एंड उसके बाद आपकी ओवरऑल बॉडी उतनी स्ट्रांग होती जाती है। तो इट स्टार्ट विद अ पुशअप, जस्ट अ पुशअप। So once we are done with the push-ups, let's say we are done with the push-ups, 30, 40, 50 push-ups करने लगे and 20, 25 chin-ups करने लगे. So then after that, see, nice question actually. क्योंकि कैलिस्थेनिक्स के साथ क्या है ना, कैलिस्थेनिक्स ऐसा वर्कआउट है जिसमें कंपाउंड मूवमेंट होता है, लाइक जैसे हम जिम में जाते हैं, तो सपोज वी हैव टू ट्रेन बाइसेप, तो वी कैन ट्रेन दी आइसोलेशन वर्कआउट, बाइसेप जितने भी होते हैं, बट कैलिस्थेनिक्स में आइसोलेशन करना इज अ वेरी वेरी टफ टास्क, यू नीड स्ट्रॉन्ग मसल माइंड कनेक्शन। तो उसके लिए ये है, जैसे अगर आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, सपोज यू आर एबल टू डू 15 पुल-अप्स इन अ रो फॉर 3 times and you are able to do 15 push-ups in a row for 3 times, it's time to move for push-up variation, like आपने देखा होगा अलग तरह के पुशअप होते हैं, डायमंड पुशअप, वाइड पुशअप, जो आपके चेस्ट के, अपनी बॉडी के एंड ट्राइसेप्स के डिफरेंट पार्ट को ट्रेन करते हैं। ऐसे ही वो पुशअप के अगर आप थोड़ा सा बॉडी को अपना एलिवेट कर देंगे, तो यू कैन ट्रेन योर शोल्डर्स टू। ऐसे ही जैसे पुल-अप्स होते हैं, तो यू कैन हैव दी एक्सेस के ऑस्ट्रेलियन पुल-अप्स होते हैं, चिन-अप्स होते हैं। So with every posture, with every grip, with different grip, you can train different parts of your back. And इसके साथ ही जैसे आपके legs होते हैं, squats करते हैं आप, तो you can add jump squats आप कर सकते हैं, walking lunges आप कर सकते हैं, and you can hold something in your hand, a bucket hold कर सकते हैं आप, even anything you want to। और इसके साथ साथ जो प्रोग्रेशन जो होती है कैलिस्थेनिक्स में, विच आर द फ्री स्टाइल कैलिस्थेनिक्स, जो हम लोग यूट्यूब पे जब भी हम सर्च करेंगे, हमको मिलेंगे मसल अप, सिंगल लेग स्क्वाट, फ्रंट लीवर। तो ये एक्चुअल जो कैलिस्थेनिक्स है, लोग इसको ऐसे जानते हैं, बट कैलिस्थेनिक्स इज जस्ट अ वर्कआउट, यू आर ट्रेनिंग योर बॉडी, यू आर यूजिंग योर ओन बॉडी टू गेट अ बेटर वन, दैट्स इट। वो उसमें स्टाइल्स आ जाते हैं जो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे। तो अब आई थिंक न्यूट्रिशन के साइड पे थोड़ा चलते हैं, बिकॉज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, सो ये आपको ऑलरेडी पहले से एक्सपीरियंस होगा, आइडिया होगा कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल होता है क्या है कि डाइट, स्पेशली फैट लॉस डाइट, देयर इज नो डाइट इन दैट बेसिकली प्लान में, पीपल आर स्टार्विंग देमसेल्व्स। एंड ऑन द अदर साइड जहाँ मसल गेन में है, सो दे आर ओनली कंसर्न अबाउट प्रोटीन्स, बाकी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को स्किप कर देते हैं, एंड विलन समझा जाता है फैट्स को सबसे ज़्यादा। So what's your point on that? I think I should start with the fat loss, because I think most of the people in this whole planet, they you know, वो obesity से like उनको सफ़र कर रहे हैं, एक स्ट्रगल, क्योंकि जो हमारी आज का रूटीन है, जो हमारी आज की डाइटिंग है, फूड जितना इजीली अवेलेबल है, वो भी जो जंक है, तो लाइक फास्ट फूड जो है जो बहुत इजीली अवेलेबल है, और उसकी वजह से मेजर इशू ये, हम लोग खा तो रहे हैं, हम वी आर जस्ट लोडिंग द फूड एंड विदाउट नोइंग कि हमारे स्टमक में क्या गया। तो फैट आज के टाइम पे हर कोई अनफिट है, ऑलमोस्ट अनफिट इन द सेंस कि जैसे आप देखते हैं, अगर आप इंटरनल भी चेक कराओगे, यू विल गोना फाइंड समथिंग, कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड शुगर लेवल विल बी अनइवन, और कुछ भी ऐसा लाइक, एंड साथ में वो ओबेसिटी बाहर भी दिखती। तो बस उसमें यही है, फैट की जब हम इस पे आते हैं, इस पर सेकंड ओके, तो जब हम फैट के ऊपर आते हैं, तो बेसिकली जो न्यूट्रिशनिस्ट या फिर जो भी वर्ल्ड में, या फिर जो भी यूट्यूब पे या फिर कहीं भी जो भी अपना डाइट सजेस्ट कर रहा है, दे लाइक दे वांट जस्ट पीपल टू स्टार्व। आपने सुना होगा हमारे यहाँ जीरो कार्ब डाइट जो होती है, दे आर डूइंग कीटो डाइटिंग, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेंड में कीटो डाइटिंग। तो आई डेफिनेटली डू नॉट सपोर्ट कीटो डाइटिंग, सिंपल बिकॉज यू नो आई थिंक कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, जैसे हमारी बॉडी के लिए फैट ज़रूरी है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, वैसे मिनरल्स भी ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी बॉडी से कार्ब्स कट कर देंगे, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन जो है, आपका बॉडी का वाटर लूज होता जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो स्टोर मसल को यूज करेगी, बट हाउ यू विल गोना गेट द एनर्जी। एक्चुअली एक मसल हाइपरट्रॉफी होती है, आई स्किप द वर्ड, मसल हाइपरट्रॉफी रेंज। मसल हाइपरट्रॉफी एक वो जोन होता है जहाँ पे आपकी बॉडी जिसकी मसल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, तो उनको फूड चाहिए, फ्यूल। द फ्यूल इज प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। एंड अगर आपने सपोज एक भी फ्यूल में से कुछ भी मिस आउट कर दिया तो डेफिनेटली आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, वो जो पर्टिकुलर जो पार्ट है उसकी मिसिंग वहाँ पे रहेगी, यू कैन गेट इंजर्ड। आप हो सकता है आपको बहुत डल फील हो, आपको लगेगा आपका बॉडी में से वाटर निकल रहा है, आपका वेट भी लॉस हो रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सफरिंग, जस्ट स्टार्विंग, एंड द मोमेंट यू कैन लोड द फूड, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको कभी थोड़े से कार्ब्स खाने पड़ जाए, डेफिनेटली फिर वो आपको अपने वेट में चेंज दिखेगा, अपनी बॉडी में भी चेंज दिख सकता है आपको। तो
आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट कीटो डाइटिंग. इंस्टेड ऑफ दिस आप एक बैलेंस डाइट रख सकते हैं. यू कैन इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोटीन. इट्स लाइक अगर आप 70% प्रोटीन रखते हैं अपने डाइट में, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी हैं तो भी आप अपनी डाइट में कार्ब्स खाने हैं, क्योंकि कार्ब जब डाइजेस्ट होंगे, वन कार्ब सेल व्हेन द कार्ब सेल डाइजेस्ट, एक कार्ब सेल डाइजेस्ट तो 1 कैलोरी बर्न होती है. तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में भी इंटरनली आपका मेटाबॉलिज्म तो है वो बूस्ट अप रहता है. तो यू नीड कार्ब टू गेट फैट इन द फैट लॉस. ओके, इसी के साथ जैसे हम वर्कआउट करते हैं, कुछ डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं कि फास्टेड कार्डियो अच्छा है, कुछ कहते हैं कि फास्टेड कार्डियो क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है एंड वो दैट वोंट बी मच इफेक्टिव. सो व्हाट्स योर पॉइंट? माय ओपिनियन आई थिंक हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है. लाइक जैसे सपोज मैं मेरे बारे में बताता हूँ, तो मैं हाईली एक्टिव गाय. मेरे जेनेटिकली मेरे फादर भी वो स्पोर्ट पर्सन थे, तो उन्होंने काफ़ी जब वो थे बहुत एक्टिव हैं. मेरा मैं ही एंड माई ब्रदर, जूनियर ब्रदर एंड मी एंड हम सभी लोग हाईली एक्टिव होते. तो आई वाज 48 kgs. आई ट्राइड के टू ईट अ लॉट बट आई वाज नॉट वर्किंग आउट. तो मेरा जो मेटाबॉलिज्म था उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाया, मैं उसको हिट ही नहीं कर पाया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ट्रेनिंग. लाइक ऑफकोर्स डाइट मैटर्स, बट अगर आप उस इंटेंसिटी पे ट्रेन ही नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट गोना गेट द रिजल्ट. और अगर हम पुट ऑन करने की बात करें, जिसको मैं ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर ट्रेनिंग. तो जब आप प्रॉपर ट्रेन करोगे तब आपको लगेगा भूख जो होती है, मसल आपके ट्रेन होंगे वो स्टार्व करेंगे. उसके बाद आपको आती है लोडिंग करने की जब बात आती है, तो डेफिनेटली मेरे लिए सबसे अच्छा लोडिंग फेज रहता है. मैं दिन के जो 12 आवर्स होते हैं, यानी कि द ब्रेकफास्ट, द लंच एंड उसके बीच में एक और मील मैं रखता हूँ. तो एक बड़ी पुराना कोट है कि यू शुड टेक योर ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड व्हेन इट कम्स टू लंच यू शुड eat like a king. एंड जैसे जैसे शाम होती जाती है एंड यू कैन कार्ब्स, आप प्रोटीन पे रह सकते हैं. एट द नाइट यू कैन हैव केसीन एंड यू कैन हैव सम फैट्स टू, ताकि आपको साउंड स्लीप आए, आपके मेलाटोनिन रिलीज हो बॉडी से. बहुत सिंपल है. अच्छा, इसमें मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन ये था कि वर्कआउट से पहले हमें कुछ खा के वर्कआउट करना चाहिए या एम्प्टी स्टमक करना चाहिए? डेफिनेटली यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट जब वो डिप्लीट होते हैं तब आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल आपका इंक्रीज होता है. यू नीड द एनर्जी टू ट्रेन. लोग कैफीन लेके वर्कआउट करते हैं, डेफिनेटली कैफीन कैन गिव यू द बूस्ट, बट हाँ आपको कार्बोहाइड्रेट की नीड रहती है ताकि आप अच्छे से प्रेफरेबली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. आई थिंक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. अब अगर आप वर्कआउट से लाइक 30 मिनट्स के अराउंड आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के 30 मिनट पहले कुछ आप खा रहे हैं, यू शुड गो विद सिंपल कार्ब्स. लाइक आप बनाना खा सकते हैं, यू कैन हैव अ जूस, सिंपल कार्ब लाइक ऐसा शुगरी जूस. एंड अगर आप थोड़ा सा और टाइम लेना है, 45 मिनट्स एन आवर, यू कैन हैव ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, यू कैन हैव ओट्स आर द बेस्ट. यू कैन हैव राइस टू. एंड हमारे इंडिया में रोटी बहुत चलती है. रोटी आर टू लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट, बट आई प्रेफर राइस, ओट्स एंड ब्राउन ब्रेड आर बेस्ट in this example of cornflakes. And what about intra workout? Some people suggest that you should take BCA. I think बहुत मिथ है दुनिया में, इसको लेके बहुत confusion है with the BCA. I personally take BCA because you can say I'm addicted to it or I feel very hydrated. I like the flavor, I like the texture. But हाँ, you need water. लोग कहते हैं during workout water नहीं पीना चाहिए, but your body is all about water. Like it's 70% and more than water. सब कुछ आपकी बॉडी में वाटर ही है. तो इमेजिन यू आर ट्रेनिंग रियली हार्ड. अगर आपका वर्कआउट आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पा रहे हैं, यू आर लकीली ऑल योर कार्ब्स आर शटलिंग वेल, तो आपका वर्कआउट हो सकता है एक ही जगह 1.5 घंटा भी खींच जाए. तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको अगर प्यास लगेगी तो आप बिल्कुल एकदम सोट के साथ आप कर रहे होंगे. तो इवन द प्रोफेशनल दे यूज द BCA, दे यूज वाटर, सम पीपल यूज ग्लूकोज, द स्किनी वंस. So yeah, you can use the inter workout. I prefer BCA and you can go for glucose too. And the guys who are into fat loss, they can use the BCA. Okay. So bro, मूव करते हैं. जैसे आप ट्रेनर हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होगे, आपके पास बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स लेके या कुछ सॉल्यूशंस के लिए आपके पास आते होंगे. So what do you think? Most of the people go for cosmetical fitness or they want to feel fit? They want to look fit or they want to feel fit? Well, I think 70% of people, I'm talking about the youth only, 70% of youth want to look good. Like they just want to look good in the pictures. They want to look good in the Instagram. They want to look good in the certain clothes. They want to look good in certain places. So 70%. 30% are those people who are looking forward for a big goal. इनको लगता है कि हाँ अगर आज वो लोग अपने इंटरनली वो अपने आप को ठीक कर लें, बिकॉज दे नो व्हाट्स गोइंग टू समथिंग रॉन्ग, इफ समथिंग डिजीज और सम प्रॉब्लम, तो वो लोग पर्टिकुलरली चाहते हैं कि वो लोग फिर डिजीज को क्योर करके आगे बढ़े. तो इट्स ऑल अबाउट लुक्स. पीपल वांट टू लुक गुड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड इंटरनल. अक्सर ऐसे में होता क्या है कि दे गो फॉर
shortcuts, definitely. anabolics or maybe peptides. Mm-hmm. And 90% लोगों का गोल ये नहीं होता कि उन्होंने स्टेज पे जाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है. हाँ, उनका yeah, गोल you got my point, you got my है point. कि एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिट फील करें, कोई भी डिजीजेस नहीं होने चाहिए. तो हाउ डू यू टैकल विद दोस पर्सन? उनको क्या आप गाइड करते हो? I do have actually I used to work in हरियाणा. तो वहाँ पे मैं हिंदी में प्रॉपर हिंदी में वहाँ के स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता था कि अभी भी मैं बोलता हूँ सब स्टूडेंट्स को कि देखो भाई ऐसा है, अगर आपको स्टेज पे नहीं चढ़ना ना तब भी आप बिना एनाबॉलिक के बॉडी बना सकते हो. एंड अगर आप स्टेज पे भी जा रहे हो तो मेक श्योर यू आर रिस्किंग योर लाइफ. जस्ट मेक श्योर आप अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कर रहे हो. आई नेवर सपोर्ट एनाबॉलिक, नॉट एट ऑल, बिकॉज अच्छी बॉडी बिना एनाबॉलिक्स के बहुत आराम से बन सकती है. वी हैव गॉट प्रोटीन, BCA, क्रेटीन, L-arginine, ग्लूटामाइन एंड एक्सेट्रा प्री वर्कआउट, लॉट्स ऑफ स्टफ. तो उसके बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरली बहुत अच्छे दिखते हैं आज के टाइम पे. बट हाँ, एक बॉडी इज लाइक नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस. आपको डे बाय डे इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सब ब्रिक एंड यू गोना गेट द बॉल. तो डेफिनेटली, और इवन दो उनको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ. मैं दिखा देता हूँ जो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं विद द एनाबॉलिक्स, उनको दिखाता हूँ मैं कि these guys are taking anabolics, they're talking about it, and इनको भी 5-6 साल लगे वहाँ पहुँचने में. तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट एनाबॉलिक. आप अच्छी डाइट, डिसिप्लिन लाइफ, 5 जो एलिमेंट्स हैं मेन, उनको यूज करके भी यू कैन हैव द परफेक्ट फिजिक, एक्चुअली द ग्रेट वन. Exactly. Basically, people want instant gratification. Delayed gratification कोई नहीं चाहता. हाँ, कोई नहीं चाहता. Yeah, you are. टॉपिक है जिसके लिए बहुत confusion है. That is NoFap. People think कि that may affect their muscle gain. And कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, that won't affect your muscle gain. Actual clarity बहुत जगह नहीं है. कोई spiritual practice करना चाहता है, that's completely fine. इस टॉपिक पे हम नहीं जा रहे. But if they are going in that direction, तो क्या फैप या मास्टरबेशन मसल गेन्स को अफेक्ट करता है? See, yeah, this is a really good question actually, the topic actually, and I have answered. I'm too young to answer this. ऐसा मुझे सब लोग बोलते हैं. But being a medical student, being a medical student, being a professional, it's my job to answer. And मैं सभी youngster को, even though जो मुझसे बड़े भी हैं, सबको I do talk about sex, I do talk about masturbation, the fact. तो मैं सबको ये डाउट, मतलब जो हमारे एक जो मिथोलॉजी जो बनी हुई है, मैं उसको क्लियर करता हूँ. तो लोगों को ऐसा लगता है कि द फैट, द मास्टरबेशन थिंग एंड द सेक्स थिंग, दिस थिंग अफेक्ट गेम्स. तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये थियरी नहीं बोल रही, ये प्रोफेशनल बोल रहा है, जो शायद हम जिस फिटनेस लाइन में वो शायद उस लाइन में 20-25 साल से उन्होंने दे दिए. एंड ऑफकोर्स इज अ नेचुरल प्रोसेस. कि मैं ये बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट जो बहुत इसको बहुत क्रिंज वे में लेके आते हैं, बहुत वियर्ड वे में, उनके पास ये क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग ये बाद में आई है. हम जब बॉडी में बने थे, हमारे अंदर ये ऑलरेडी था, जो हमारे सिस्टम में है. एंड ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. यू कांट चेंज इट. यू कांट चेंज. इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स यू नो दिस इज देयर हार्मोन. यही तो आपको अलग बनाते हैं, योर ह्यूमन बनाते हैं. तो मैं कभी भी नो फैप, नो मास्टरबेशन, इसके मतलब मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करता. यंगस्टर जो मेरे पास ये क्वेश्चन लेके आते हैं, जो बोलते हैं कि सर हमारी बॉडी डाउन हो जाएगी, विल गोना लूज द मसल्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता. बट आई हैव फेल्ट, आई हैव सीन, आई हैव हियर्ड कि एक सर्टेन अमाउंट में अगर आप अपने जैसे क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन है एंड जो आपके बेसिकली बॉडी में जो आपके जो हार्मोन्स आपके बनते हैं, इन सबका कनेक्शन है. बट दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी एट ऑल. बट हाँ, एक 72 आवर्स की प्रोसेस होती है जिसमें आपका सीमन वापस से रिबिल्ड होता है. अब उस सीमन को रिबिल्ड होने के लिए आपके टेस्टोस्टेरोन को काम करना पड़ता है, और उसी टेस्टोस्टेरोन को अब पहली प्रायोरिटी होती है बॉडी के टेस्टोस्टेरोन की, टू बिल्ड द सीमन दे हैव लॉस्ट. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी. यू कैन हैव गुड फैट, यू कैन हैव गुड स्लीप, लेस स्ट्रेस इन लाइफ, एंड योर टेस्टोस्टेरोन गोइंग टू बी पीक ऑन द पीक मिड डे. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये भी बोलते हैं कि यू कैन हैव लाइक यू नो, जो प्रोफेशनल भी बोलते हैं कि यू कैन हैव वंस इन अ वीक, यू कैन हैव ट्वाइस इन अ वीक. बट आई डोंट थिंक दिस थिंग अफेक्ट. बट हाँ, ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बीइंग अ एडल्ट, बीइंग अ मेल, tracking before workout, 3 hours before workout is going to affect your workout, because you will feel more relaxed. आपकी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज हो चुका होगा, it will be more relaxed. And after the workout, actually, it's not that you're not gonna face any issue. मतलब वो अफेक्ट नहीं करेगा आपको इतना. रिकवरी की तो आपकी सोने से, खाने से, वो प्रोसेस वो हमेशा चलता रहेगा. My camera just on. Interesting topic. Yeah. Camera just slide. Just a second. तो ये जो नो फैप और नो मास्टरबेशन है, people are afraid to talk about this. They are afraid to yeah, exactly. It's too shy, but there is nothing like that. मतलब आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट. और अगर कोई जो भी मुझे सुनेगा, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, दिस थिंग डजंट अफेक्ट योर गेम, दिस थिंग डजंट अफेक्ट योर बॉडी बिल्डिंग. बट हाँ, जो प्रोफेशनल होता है उनका अलग अपना वो रूल्स होते हैं. हर किसी का अपना
एक पॉइंट ऑफ व्यू इसको देखने का। आई थिंक मॉडरेशन इज द की, बीइंग एडिक्टेड, यस, किसी भी चीज की एडिक्शन तो बुरी है, चाहे खाना भी खा रहे हो दैट्स बैड। या वर्किंग आउट भी ऐसा, आपको ऐसा रिकवरी के लिए भी आप दिन भर 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकते, उससे भी आपकी मसल नहीं बनेगी। ऐसे ही बहुत ज्यादा एक्सेस में करने से भी यू नो इट गोना अफेक्ट योर बॉडी। बैलेंस कैन हेल्प। सो अभी जैसे हमारी बात हो रही थी कि हम एक्सेस में कुछ भी करते हैं, जी बिल्कुल, हाँ ये प्लीज। या सो व्हेनेवर वी डू समथिंग इन एक्सेस तो दैट हार्म्स अस। तो आई थिंक सेम इज फॉर बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस आल्सो। तो कई बार क्या है, जैसे एवरीवन वांट्स बाइसेप्स, बिग बाइसेप्स, तो लोग मैंने जनरली देखा है कि दे डेली वो अपनी बाइसेप्स ट्रेनिंग जरूर करते हैं कि हैमर कर लिया, फीचर कर्ल्स कर लिए, तो दे डू इट डेली। सो डज इट हेल्प इन मसल बिल्डिंग या वो नेगेटिव साइड जाता है? See, another nice question. So, but I think like most of people know, biceps is इसको थोड़ा साइंस में बताता हूँ। बाई का मतलब होता है दो, चेस्ट का मतलब होता है मसल। तो बेसिकली बाइसेप आपकी बॉडी में जो अभी आप ट्रेन कर रहे हो उसकी सबसे छोटी मसल है। So bicep is the smallest muscle in your body, and so of course everybody wants a bigger bicep. Everybody wants a bigger bicep. So imagine आपकी जो biceps है, जो भी reality है, when you are training back, your bicep will be engaged in there. तो ऑलरेडी आपकी बाइसेप की 2 मसल है वो ऑलरेडी इंगेज हो चुकी है उसके अंदर। एंड फिर आप उसके बाद बाइसेप भी, तो इमेजिन आप वीक में एक बार बैक ट्रेन करते हैं। आई लव ट्रेनिंग बैक ट्वाइस, बट आई लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक आपकी स्प्लिट है, आप चेस्ट, बैक, बाइसेप, शोल्डर, लेग, जो बिल्कुल बिगिनर स्प्लिट है 6 दिन वाला, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑलरेडी अगर आप जब बैक ट्रेन कर रहे हो तो आपकी बाइसेप तो ऑलरेडी ट्रेन हो चुकी है बैक ट्रेनिंग में। देन आप देन यू आर ट्रेनिंग योर बाइसेप अगेन, तो वहाँ भी आपकी बाइसेप ट्रेन होगी। एंड आपके पास 2 मसल है बाइसेप की, तो उन 2 मसल को आप कितना ही ब्रेक डाउन कर लो, देयर इज अ लिमिट ऑफ ब्रेकिंग अ प्लेट हुआ, उसके बाद उसके अंदर लैक्टिक एसिड इतना बन जाएगा कि यू वोंट बी एबल टू फील योर बाइसेप, आपको फोरआर्म फील होने लग जाएंगे आपके। तो सबके साथ होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ, डेली बाइसेप ट्रेन करने से आपके बाइसेप ग्रो करेंगे नहीं, लाइक एनी अदर मसल जैसे सबके सब है, जो योर बाइसेप नीड द रेस्ट टू। एंड सबसे छोटे मसल होने के बाद तो उनको ज्यादा रेस्ट चाहिए, तो यू नीड ट्रेन लेस टू ग्रो मोर। यहाँ अप्लाई होता है बाइसेप में। आई डोंट हैव बिगर बाइसेप, आई जस्ट हैव मे बी 6। मैंने मेरे बाइसेप जो मेरे जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम 8 एंड नाउ आई एम 16.5. So I don't remember I trained bicep more than maybe some days twice, but yeah, I used to train. I trained the bicep once in a week only, and that is enough. I think they still grow. Okay, so let's come to recovery. Recovery में 2 पार्ट्स में जाते हैं. फर्स्ट आते हैं कार्डियो पे. सो कार्डियो जैसे कि ये भी एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, या तो वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद. कुछ लोग कहते हैं वर्कआउट से पहले एज अ वार्म अप सेशन करो, बट कुछ लोग कहते हैं कि वर्कआउट के बाद करो, क्योंकि ग्लाइकोजन लेवल्स आपके ऑलरेडी डिप्लीटेड है, वो ज़्यादा फैट बर्न करेगा. तो इसमें आपका क्या सजेशन है? या परफेक्ट. सो कार्डियो लाइक यू नो, जैसे डिपेंड्स ऑन, मेरे लिए कार्डियो इज लाइक मैं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. लाइक आई पर्सनली डोंट डू कार्डियो, वो मेरा अपना एक रीजन है, बिकॉज आई एम एन हाईली एक्टिव गाय एंड आई ट्रेन फॉर लाइक 3 hours. तो मेरा कार्डियो ऑलमोस्ट हो जाता है. आई डू सुपर सेट, आई डू टाइम सेट है मेरा, आई डू रेस्ट कम लेता हूँ मैं बहुत, मेरा कार्डियो होता है. बट हाँ, जैसे बॉडी बिल्डर्स का एग्जांपल लेता हूँ, जो प्रो होते हैं दे प्रीफर एम्प्टी स्टमक कार्डियो अर्ली मॉर्निंग में. तो अर्ली मॉर्निंग में आई प्रीफर कार्डियो का सबसे जो बेस्ट टाइम है, अगर टाइमिंग पूछें अगर ऑन अ डे, तो इज गोइंग विद द एम्प्टी स्टमक कार्डियो. जो आपका स्टमक बिल्कुल कंप्लीटली एम्प्टी होता है, आपने जो रात को खाना खाया होता है वो आपकी बॉडी में डिप्लीट हो चुका है ग्लूकोजन सब कुछ. सो बेसिकली व्हेन इट कम टू कार्डियो, मेरा कार्डियो को लेकर यही ओपिनियन है कि डिपेंड करता है आप किस क्या चाह रहे हैं अपनी बॉडी के साथ. एंड इमेजिन इफ यू आर ऑन अ पीक, वही जैसे बॉडी बिल्डर का पीक होता है, दे डोंट डू कार्डियो व्हेन दे आर नॉट बल्किंग ऑक्सीजन पे, बट जब पीक भी हिट करता है दे स्टार्ट द कार्डियो, दे आर कार्डियो देयर वर्कआउट. तो बेसिकली कार्डियो करने का सबसे बेस्ट टाइम है जब आप एम्प्टी स्टमक हो, व्हाट आई प्रेफर. एंड इन वेरी अर्ली मॉर्निंग भी एक टाइम होता है, बिकॉज आप 6 घंटे के लिए आप देख रहे होते हो, आप सो रहे होते हो 6 घंटे. मैं मानता हूँ एवरेज स्लीप अपने लिए. तो बेस्ट टाइम टू डू द कार्डियो अर्ली मॉर्निंग कार्डियो व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक, क्योंकि आपके पास फूड है जो आपको एनर्जी दे चुका है उस टाइम पे, यू आर कंप्लीटली एम्प्टी. सो यू कैन ट्राई कि आपके पास जो भी डाइजेस्ट हो चुका है, यू कैन बर्न इट एंड यू कैन स्टार्ट द डे विद अ फ्रेश फूड, विद अ फ्रेश लोडिंग. एंड आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, बिकॉज आप कार्डियो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू वांट अ फास्टर मेटाबॉलिज्म. टू अ फास्टर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज द फास्ट अमाउंट ऑफ मसल गेन, रिकवरी. इट्स अ गेम ऑफ मेटाबॉलिज्म. सब कुछ वो मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है. तो मॉर्निंग कार्डियो एम्प्टी स्टमक इज द बेस्ट. एंड बात आती है वर्कआउट की, तो मोस्ट पीपल डू कार्डियो बिफोर वर्कआउट, मोस्ट पीपल डू आफ्टर वर्कआउट. बट आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा फैट लॉस पे जा रहे हो, तो यू कैन डू लाइक अ 10 to 15 minutes कार्डियो बिफोर वर्कआउट. एंड जब पोस्ट वर्कआउट कार्डियो है, विल गोना इट्स लाइक कि आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है
you have to just finish it, because मैं मानता हूँ आप जब जिम जा रहे हो Okay. it's like a do or die thing. तो अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है थोड़ी सी भी एनर्जी है, you should push yourself towards the cardio section, and end में जो भी बचा आप कार्डियो करके निकाल दो, क्योंकि वो easy form है and you're not just burning way too much toxic in your body, lactic acid, कोई मसल ट्रेन के, you're just doing the cardio, whole body is engaged. So I prefer doing the cardio after the workout to finish everything you have got in your body. इसमें रिकवरी पार्ट पे इससे पहले हम जाएं, है यार. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि जनरली एक मिथ है कि फीमेल्स अगर लिफ्ट करेंगे तो दे विल बी बल्क एज दे विल हैव अ मैनली फिजिक, बट यस कुछ हमने एक्सप्लेन किया है कि यस दे डू नॉट हैव टेस्टोस्टेरोन या दे लैक टेस्टोस्टेरोन, तो वो मैनली बॉडी बिल्डर फिजिक तो नहीं हो सकती. बट बीइंग अ ट्रेनर आप वुमेन को वेट ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करते हो या what do you suggest? I always prefer when it comes to training of both male and female. मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट, लिफ्टिंग इज द बेस्ट. आई प्रेफर लिफ्टिंग क्योंकि कार्डियो इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. क्योंकि अब जो डेली एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसमें वर्कआउट भी कर रहे हैं, कार्डियो भी कर रहे हो. बस मोर इट्स लाइक कार्डियो इज ऑल अबाउट योर हार्ट इज मोर एंगेज इन एवरीथिंग, बट यू आर नॉट ट्रेनिंग मसल डेफिनेट परफेक्टली. एंड जब व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड ट्रेनिंग द लिफ्टिंग, so you are training the idle muscle, you are training the idle body actually, जो एक्चुअल में आप ट्रेन करने जो जिम जाते हो. तो डेफिनेटली मेरे बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट है, नहीं है, कुछ है अभी, तो मैं सबको लिफ्टिंग प्रमोट करता हूँ. एंड ऑब्वियसली कार्डियो करके आप उतना अच्छा रिजल्ट, केवल कार्डियो करके या यू कैन हैव द फिजिक, यू कैन लूज द फैट, पर आपकी बॉडी शेप में नहीं होगी. एंड एवरीबडी वांट अ टोन फिजिक आज के डिमांड में. आई थिंक मी, यू एंड एवरीवन वांट अ टोन फिजिक, एंड सेम विद द फीमेल्स टू. तो वो टोनिंग जो आती है वो प्रॉपर द टाइट द मसल, द क्वालिटी ऑफ द मसल, द टाइटनेस ऑफ द स्किन, इट कम्स फ्रॉम द कंपाउंड लिफ्टिंग. एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प योर मेटाबॉलिक बॉडी टू. आपका अच्छे से एपेटाइट भी आपका अच्छे से काम करता है. यू गेट हंग्री, यू गेट यू ईट गुड, यू डाइजेस्ट गुड, यू स्लीप गुड. तो डेफिनेटली आई प्रेफर लिफ्टिंग द पर्टिकुलर थिंग. आई लव लिफ्टिंग एंड मैं प्रमोट भी करता हूँ. मेरे जितने फीमेल स्टूडेंट दे लव लिफ्टिंग टू. मतलब दे जस्ट कीप डिस्कसिंग देयर बेंच टोटल, देयर स्क्वाट टोटल एंड ऑफ कोर्स डेडलिफ्ट. That's great. Okay, so अब आते हैं रिकवरी पे. What is the best cool down schedule after workout session, after an intense workout session? I prefer best cool down schedule. Cool down schedule. So what I do after training, before taking the protein, I take protein after workout, and after finishing my last set, I just take a mat, I sit on the floor, and वहाँ पे हम जो हमारा भ्रामरी होता है, so of course इतना लाउड हमारी योगा का एक फॉर्म होता है भ्रामरी. मैं उसको जिम में नहीं कर पाता, बट व्हाट आई डू, आई जस्ट सिट इन द आसन पोजीशन, जैसे वो क्रॉस लेग करके, एंड व्हाट आई डू, आई काउंट ऑन माय ब्रीथ टू काम माय बॉडी डाउन, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत हीटेड है, बहुत ऑलरेडी माय हार्ट बीट इज ऑलरेडी डाउन बिकॉज आई टेकन टू मच ऑफ कैफीन. तो बहुत हाई इंटेंस बॉडी है उस टाइम के लेवल पे. तो व्हाट आई डू, आई जस्ट डू द भ्रामरी, और आई डू मैं थोड़ा ध्यान लगाता हूँ. एंड लास्ट थिंग आई डू, आई लाई ऑन माय स्टमक एंड आई स्टे देयर फॉर लाइक आई स्लो फॉर लाइक 2 or 3 minutes. एंड आई थिंक इतने में मेरी जो हार्ट बीट है दिस थिंग कम इनटू अ सेंटर. मेरा माइंड भी शांत हो जाता है. एट लेवल ऑफ ग्लाइकोजन जो भी बॉडी में डिप्लीट हो चुका है सब कुछ शांत हो चुका है, बॉडी काम, एंड आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड व्हिच इज टेकिंग द प्रोटीन एंड मील आगे आ गया. तो बहुत इजी शेड्यूल है. आई डू द शवासन. द बेस्ट थिंग आई लाइक टू डूइंग शवासन. 1 मिनट का शवासन इज लाइक कंप्लीटली फाइन टू काम योरसेल्फ डाउन फ्रॉम एनीथिंग यू हैव डन. चाहे आप कितना भी हैवी लिफ्ट लेके आए हो, डू दैट थिंग एंड यू कैन काम योरसेल्फ. सो एज यू सेड कि मेडिटेशन या थोड़ा सा ध्यान लगाना, मेडिटेशन में भी ऐसा क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है कि अगर आप इस पोज में ध्यान लगाओगे ज़्यादा इफेक्टिव है, उस पोज में लगाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू मेडिटेशन? आई थिंक आप अगर यू हैव लाइक everyone have the stress in their life. अब वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, फैमिली, योर वर्क, anything that could be thousands of reasons. So meditation is the only cure to clear all the things you are going through. And I think meditation इतना complex होगी क्योंकि वही है ना, आपके पास जब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तब आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. वरना जो हमारा I think we are confused with the access of information. Exactly, the access of information is making things complicated. पहले योग करना हम छूट में थे, हम सबने योग किया है, सबको हमको क्रॉस लेग करके बिठाते थे. हमें जो ऋषि मुनि जो हमारे देखे हैं वो इतने पहले से उस चीज को ध्यान लगा के कितने सुपर नेचुरल चीजें कर दी. तो वो हम भी कर सकते हैं. It's just a simple thing. You can just sit to cross leg and you can do this thing and close your eyes
And what I do, मैं imagine करता हूँ मेरे पास एक black canvas है and there's a white dot. I close my eyes, I focus on my breath and मैं उस white dot पे focus करता हूँ. I think meditation इतना ही आता है. It's just कि उसके difficult posture है. Some people include music in this कि आप ये music सुनो. Some people say कि आपके सांसों का pattern आपको ये होना चाहिए. Some people think कि आपको ऐसे environment में करना चाहिए. I don't think ऐसा कुछ है. You just need less noisy place and कुछ भी एक शांत घर का कोना, a garden, a place or in your office, any place. You can just sit, you can just focus on a dot and इतना easy meditation. बस हाँ, हमारे पास जो excess of information उसने बना दिया. So Exactly. I don't prefer anything So- special. It's just you can just sit and focus on saying anything you want. So thank you so much, Shiva bhai. Thank you so much Thank you. It's my for sharing your greatest pleasure knowledge, to be here. for Thank you. motivating us and I'm इससे पहले कि हम Right. आगे जाएं क्लोज करें, क्योंकि फिटनेस इतना डीप टॉपिक है, हम आधे एक घंटे में डिस्कस नहीं हाँ, कर सकते. नहीं कर अगर सकते, कुछ नहीं कर लोगों को कोई भी सकते. क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम आईडी अपनी बता दो ताकि दे कैन कनेक्ट विद Yeah. यू ऑन इंस्टाग्राम Sure. एंड I'm द on- नेम I'm ऑफ योर on- जिम. Yeah. Name of my gym. Actually, my gym is in my hometown. So it's One Life Fitness. तो वहाँ पे तो अलवर बहुत I'm from अलवर actually बहुत छोटा है. तो वहाँ पे तो उन लोगों तो मुझे जानते हैं. It's like 3 kilometer in अलवर is done. But हाँ, currently I'm in Jaipur. So I do train online. जो कि मेरा Instagram पे है, मैं अभी बताऊंगा information. So they can contact there too. And that's all I do. I'm not connected to any gym right now in Jaipur. I do train online people and some PTs only in certain places. But yeah, if you guys have any query, so my Instagram is myself soft-hearted beast. Yeah, the guy with a soft heart and a beast too. The soft-hearted beast, and you can find me Shiva. My name is Shiva Kumar. I'll put the link in the description as well. Yeah, that will be great. Thank you so much. So you guys can find me there, and I'm very active on Instagram. I do try to answer all the queries. अभी रेगुलरली आती रहती है तो आई डू हैव लाइक जैसे आपका शेड्यूल ऐसा मेरा भी होता है, बट आई ट्राई टू आंसर एवरीथिंग एंड या आंसरिंग द क्वेरीज जस्ट वे टू फ्री. तो आप लोग आए, जो भी क्वेरी है, आई एम हैप्पी, आई विल बी ग्लैड टू आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑन द any doubt you have regarding anything. So yeah, again, the soft hearted beast, Shiva Pawar. You can find me on Instagram, and yeah, thank you. So for anyone who's looking for a personal training session या कोई भी calisthenics से related या fitness से related doubts हैं, so you can directly connect with Shiva bro. Yeah, The that link will is in be the great. Thank description you box. so much. And thank you so much bro for It's my pleasure. It's my pleasure time to be निकालने here. के लिए and knowledge share No, करने it's के like लिए. I do. It was No, it's my a pleasure. great, yeah. It was just great meeting to you, and have a nice Eid. And who is watching you guys, have a great year ahead. Wish you all a happy new year, and be safe, be inside, be indoors. And if you're going outdoors, just be safe, use a mask, और बस अपने डाइट का ध्यान रखो, be fit and enjoy the life.